कि जितने बड़े कॉलेजेस हैं वो बड़े स्कोर वाला बच्चा लेंगे. Now the child, when he gets into that college, he will be able to understand and grasp whatever is being imparted. जनरेशन ही किसी कंट्री को डेवलप करने का काम करती हैं, जो भी नई आने वाली हैं, बट हम उनको क्या दे रहे हैं, हमें भी थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए. हम जब बात करते हैं स्कूल्स में, सो इट्स ऑल अबाउट कि वहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ों को कॉमर्शलाइज कर दिया गया है. पहली चीज़, आप एक पढ़ाई का टाइम भी फिक्स करिए कि ये टाइम मेरा पढ़ने का. उस टाइम पर नो मोबाइल्स, नो सोशल मीडिया. गिव, इफ़ यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ, गिव योर फोन टू योर मदर और फादर और कीप इट इन अ लॉकर. डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है सर इंडिया में. अगर मैं मतलब ये सोचता हूँ हाई प्रोफाइल जॉब मेरे लिए तो यही काम है, मैं यही कर सकता हूँ, ये वाला काम मेरे को सूट ही नहीं करता. अरे पैसा कमाने से मतलब है और एक अपनी रेपुटेशन होने से मतलब है. आप वहाँ से स्टार्ट करिए, कहीं ना कहीं पहुँचेंगे अगर आपके अंदर टैलेंट होगा. अब रिलायंस की भी बात करें तो यही सुनने में आता है कि धीरूभाई अंबानी ने लोटा बेचा था, उससे वो पैसा रिसोर्सेज जनरेट करे और आज वो यहाँ तक पहुँचे थे. मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखिए कहाँ है. वेलकम टू द राजू गोला शो, जहां पर हम लेकर आते हैं ऐसी हस्तियों को जो आपको लीडरशिप, स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई बहुत सारी नॉलेज देते हैं. और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस्टर मुकेश मीरचंदानी जी, जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है एंड वेरी गुड एजुकेटर, मोटिवेटर एंड काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ ड्रीम एजुकेशन पॉइंट. चलिए मिलते हैं. मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे शो में. धन्यवाद. थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि क्या एग्जैक्टली आज आप इम्पार्ट कर रहे हैं लोगों को, कैसे एजुकेट कर रहे हैं आप. Sir, we entered this journey of imparting education 25 years back. Me and my wife, who is also a chartered accountant, we are catering to the students of chartered accountancy from 25 years. Plus, we were into educating people for law entrance examinations, IIM entrance examinations. So it's a very long journey that we have been with students, understanding their requirements, fulfilling them, and making them successful in life. So this is what we have been doing from last 25 years. Dream Education Point. How we defined exactly it? Because there have been so many institutions, like बहुत सारे हैं, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सर, एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप का एक सपना होता है कि वो कुछ करे जी. फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो खुद अपने सपने देखना शुरू करता है, जो कुछ हद तक उसके पेरेंट्स या उसके अपने इंक्लिनेशन से निकल कर आते हैं. इसी चीज़ को ध्यान में रखकर, कीपिंग दिस सेम थिंग इन माइंड, वी नेम्ड आवर इंस्टीट्यूशन एज ड्रीम एजुकेशन पॉइंट. तो यू ड्रीम इन एजुकेशन वेयर वी हेल्प यू टू अचीव दैट सक्सेस या accumulate those skills so that you can pass that examination. So this was the purpose why we named it as Dream Education. So we actually have been talking about examinations. So what particular examinations we are working upon? Basically, so we were into CA, CS, and we had a tagline, you name it, we teach it. Okay. So we were into every topic of commerce that we could have taken, like CA, CS, CMA were the primary this thing, even 11th and 12th, then graduation, post-graduation level, net level, anything that people wanted in commerce. Now, after that, we started with a franchise with some national brand where we took CLAT, IPMAT, CUET, CAT. When we have people who have, from Agra itself, who have been into FMS, IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, whatever you can think of, the premium IIMs. Also, we have students who have got into integrated programs into IIMs only, and also law universities, national law universities from Agra itself. So we have nurtured students where we have given them that instinct, that knowledge, that hard work, so that they could make into these colleges, and now they are pursuing their dreams. And most of them, there are more than 100 chartered accountants in Agra practicing who are our students. Great. Similarly, there are so many students who have passed out from NLUs and they have become a budding lawyers. Great. They are making their careers in that. So we'll be talking about these all the education sectors जो भी आपने एग्जाम्स के नाम दिए हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं. हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी? इट वाज ऑलवेज दैट इन द माइंड कि मुझे लाइक एजुकेशन में जाना है, इस फील्ड में जाना है, और इट वाज समथिंग एल्स, और धीरे धीरे टर्निंग पॉइंट कहीं से आपको यहाँ पर लेकर आ गया? माय फादर वाज मैनेजर मधु आइसक्रीम. वी हैव सर्व्ड देम फॉर 55 years. मतलब 55 years of long journey. I have seen him servicing. So it was pre-inclined and we were not from that good family where we had a lot of financial resources. So it was always that I would get into a job. But somehow after doing a job for 6-8 months, I realized that I was not made for it.
And then we thought what could have been better since schooling, matlab since I have done my 10th from St. Paul's, 12th from St. Peter's, Agra. Now since my school time, to generate my pocket money, to generate our own resources, so we were into teaching. So somehow after that job I realized that this can be the most noblest of things, where you cannot cheat people. Matlab any profession that you get into has some or the other loopholes where you have to get a little out of track to get rich. But here it's not about becoming richer, but here at least you can serve the society. You can at least help these children acquire the adequate skills required so that they can be successful. And it seems really we feel really very happy when we see our children on the top notch positions. So somehow matlab service was the criteria, but it's all fortune that you say the things led that way, that me and my wife, we entered into this coaching sector. How do you differentiate this field? You are an educator, तो एक एजुकेटर को बाकी सारे और प्रोफेशन से आप किस तरह से अलग देखते हैं? सर बाकी सारे प्रोफेशंस ग्रो यहीं से होते हैं. Yes. अगर हम कहें कि कोई जज है तो कहीं ना कहीं वो पढ़कर ही आया होगा और उस लेवल का उसके अंदर स्किल्स हमने कहीं ना कहीं इस तरीके के डाले होंगे ताकि वो उस लेवल तक पहुंच पाए. तो दिस इज द seedling activity where the seed grows into a plant and then grows into a tree. The education is the primary of everything, and we start from the very basic level in the entrance examinations, so that these people, after getting their strong base, they can reach any level they want to in life. So this is the primary thing that people start with. That's great. As we always talk about education और educator, मतलब बड़ा ही एक noble profession है. और as you mentioned कि हम यहाँ पे cheat नहीं करते हैं लोगों को, and we just go for giving lot of knowledge जितनी भी हम दे सकते हैं. We always just feel so कि हमारा जो student वो जितना ज़्यादा grow कर सके, we always feel pride on that. लेकिन एक चेंज भी आया है, एंड देयर सो मेनी थिंग्स स्टार्टेड रेजिंग इन द सोसाइटी. इवन बहुत सारे क्वेश्चंस आज रेज होने लग गए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी. जैसे इसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ, बहुत सारी कोचिंग्स आने लगी इसमें. सो यू ऑल्सो फील कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं जो उसको कहीं ख़राब करने लग गए हैं एजुकेशन सिस्टम को? सर ईजी वे ऑफ अर्निंग बनाने के लिए कुछ लोगों ने, जिनके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं थी या उनके पास स्किल्स नहीं थे कि वो जॉब्स पर जा पाएँ या कुछ कर पाएँ, तो उन्होंने अपने सेंटर्स खोले. तो कहीं ना कहीं वो कुछ समय तक सक्सेसफुल होता है, लेकिन लंबे समय तक वो चीज़ रन नहीं करती है. तो पीपल हु एंटर्ड बट वर नॉट कैलिब्रेस, दे ऑटोमेटिकली मूव आउट ऑफ द मार्केट आफ्टर सम टाइम. तो दे मूव आउट, बट कहीं ना कहीं जो कुछ बच्चे उनके पास जाते हैं उनको तो वो कहीं ना कहीं कुछ लॉस दे जाते हैं. इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं. आई एग्री सर, बट दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड इन एनी फील्ड. इट्स लाइफ. तो शुड देयर बी सम काइंड ऑफ सिस्टम जो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर सके? या ऑफ कोर्स, मतलब इवन लाइक यू से दैट हम स्कूल एजुकेशन की भी बात करते हैं, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन अगर हम स्कूल की भी बात करते हैं तो स्कूल से सारे बच्चे शाम को ट्यूशन पढ़ने जाते हैं. तो क्यों ना हम वहाँ से स्टार्ट करें कि स्कूल के बच्चे को बाहर जाकर ट्यूशन्स ना पढ़नी पड़े. पूरा दिन वो अगर 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में बिता कर जा रहा है, तो शायद स्कूल उस लेवल से ही वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ्लॉ है. तो वहाँ से अगर हम ठीक करना शुरू करें और बात की भी बात करें, और कोई एक जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके साथ एक प्रोफाइल्ड एक सिस्टम हमें बनाना ज़रूर चाहिए, जहाँ पर हम उनके लेवल ऑफ एजुकेशन को टेस्ट करते रहे, ताकि जो वो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं वो एडिक्वेट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, इसके बिना तो मुझे भी नहीं लगता कि अगर हम बिना टेस्ट के, बिना किसी प्रोफाइल के अगर हम हर किसी को एक टीचर बना देंगे, तो शायद कहीं ना कहीं सोसाइटी को कुछ नुकसान कुछ समय के लिए तो वो देगा. जब हम क्वैक्स को अलाउ नहीं करते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स को अलाउ नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से झोला छाप टीचर्स भी अलाउड नहीं होने चाहिए. दैट्स वेरी मच ट्रू. एक क्वालिफिकेशन चेक तो होना ही चाहिए कम से कम, कि मतलब इतना तो आपको कर ही लेना है. आप 12th वाला बच्चा भी पढ़ा रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं टीचर हूँ, तो ये तो गलत है ना. मतलब कहीं ना कहीं एक मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, अगर हम टेस्ट नहीं रख सकते तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड तो रख ही सकते हैं कि इससे कम में टीचर नहीं होना भी चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. जैसे स्कूल में भी बीएड होता है या बीपीएड होता है या कुछ भी होता है, ऐसे ही अगर प्राइवेट कोचिंग्स के लिए भी कुछ ना कुछ तो सिस्टम होना चाहिए चेक करने का. 100% दैट शुड बी दैट.
यहाँ पे हम एक बात करते हैं, लाइक जब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में, तो काफ़ी सारी जगहों पे तो कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया गया है कि भाई स्कूल्स में जो आ रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स ओपन होने लग गए हैं बहुत सारे के, कई सारी जगहों पे टीचर्स को बहुत अच्छी खासी सैलरीज नहीं दी जाती है। दे हैव बीन स्पोकन डायरेक्टली कि भाई आप बच्चों को लेके जाइए, उनको ट्यूशन पढ़ाइए, उससे अर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें डबल कहीं ना कहीं बच्चे का ही लॉस हो रहा है। True. एक तो वो बहुत सारा जो टाइम है जो स्कूल में जब दे रहा है 6-7 घंटे, वो सेम टीचर्स टीचिंग दैम इन ट्यूशन, और वो उनको सेम नॉलेज अगर वो दे सकते हैं तो वाई दे आर नॉट इम्पार्टिंग द सेम नॉलेज इन द स्कूल। यही बोला मैंने, इसी चीज़ को ठीक करने की आवश्यकता है। तो बोर्ड्स को देखना चाहिए, CBSE, ISC, UP बोर्ड्स को, कि भाई अगर स्कूल में है तो स्कूल का बच्चा ट्यूशन्स में ना जाए। वो पेरेंट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। हमें ये देखना है कि हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और पॉम्प एंड शो दिखाने के लिए सारे बच्चों को फोर्स करते हैं पेरेंट्स को कि हमें ये करना है। भले ये चीज़ अगर गवर्नमेंट करेक्ट करे तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर भी इस चीज़ का प्रेशर कम होगा, तो वो एक एडवांटेज के रूप में देखा जा सकता है। तो सैलरी तो इतनी होनी चाहिए टीचर्स की कि भाई, एक शायद ये भी रीज़न है कि शायद सैलरी प्रॉपर नहीं है, इसलिए उनको ये चीज़ करनी पड़ती है। अगर स्कूल के लिए भी नॉर्म्स बनाए जाएँ कि अगर आप टीचर रख रहे हैं, जैसे बाकी चीज़ों के स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसी सैलरी नॉर्म्स भी होने चाहिए कि इतनी तो कम से कम आपको देनी पड़ेगी, तो शायद हम इस चीज़ पर भी काम कर सकते हैं। सर, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, जीते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं, बट दीज काइंड ऑफ पॉडकास्ट व्हेन वी गो फॉर हैविंग, हम कोशिश वही करते हैं कि बहुत सारी कड़वी बातें हैं जो बाहर निकल कर आएँ और लोगों के सामने तक पहुँचे, बिकॉज वो कई बार हिडन रह जाती हैं एंड पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट। हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ द थिंग, और हमारी एजुकेशन वो चीज़ होती है जो हमें बेस देती है इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। आदर वी आर टॉकिंग टू दैट पर्सन, टू दैट फैमिली, टू दैट सोसाइटी और द कंट्री, राइट। और उसके ऊपर भी जब हम बात नहीं करते हैं खुलकर, तो ये एक सच में वर्थ थिंकिंग क्वेश्चन है, सोचना चाहिए हमें इसके ऊपर, बिकॉज सो मेनी चेंजेस आर कमिंग, बहुत सारी चीज़ें बदलाव में आ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें आगे भी हम देख रहे हैं बदलने वाली हैं या बदल सकती हैं फर्दर। विल बी टॉकिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स। अभी बात करते हैं इस समय ड्रीम एजुकेशन पॉइंट किन पर्टिकुलर एग्जाम्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, या किन के ऊपर सबसे ज़्यादा एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है? प्रोफेशनल एजुकेशन हमारी जो बेसिकली है वो कॉमर्स बेस्ड ही है, CA, CS एंड CMA। इसके अलावा क्लैट, IB, मैट, मतलब ये वाले एग्जामिनेशन हैं, या CUET है, इस पर भी हम थोड़ा बहुत अपना एम्फोसिस रखते हैं। CUET, लाइक व्हेन वी पास्ड हाई स्कूल, इंटर एंड ऑल, तो उस समय ये सब कुछ नहीं था, तो अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है। क्या इसकी ज़रूरत महसूस हुई? Why it was started like? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा मे बी दैट he or she did not study for the whole year. Now teachers who have been teaching from 20 years, 25 years, 30 years, like सर सॉरी टू इंटरप्ट, पहले मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है शायद जानती ना हो CUET क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, and then we'll just go for CUET is Central University's entrance test, where every child who wants to get into Central Universities for their graduation, they have to appear for this test. There are 3 parts, 3 sections. The first is English language. Well, there are 13 languages. One of them is English for North India. Of course, from a good school, you will choose English. You can choose Hindi also, that is our country's language. Then you have other regional languages, Marathi, Gujarati and all those. So there are 13 languages, so you can choose any one of them, where you will be tested for 50 marks. The second section is the domain, whatever you have started in your 11th and 12th standard. That's the second part, where you'll have to choose 3 subjects out of those domain topics, where if you want to get into BSc, then it is PCM. You want to get into biotechnology, it is PCB. Where you want to get into commerce subject, BBA or something like that. So it has to be either maths, accounts and economics, or accounts, economics or business studies. This is how you make a choice between the domain subjects. The third part and the important part is general test, where you have maths, reasoning and current affairs. So these are the 3 parts. You are tested on all these parts, and then there is a cumulative score that you get that takes you to any of these central universities. Now this test is important. Why? Because earlier what used to happen is, like I was saying, like I have been teaching from 25 years. Bring a student to me who has not studied the whole year. I'll give him a set of let's say 50, 60, 70 questions, maybe max, economics में। मैं कह रहा हूँ कि पूरा बोर्ड का पेपर उस 70 क्वेश्चंस के अंदर ही होएगा, पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आपको। और बाई चांस आप और भी अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने उसमें से 25 ही प्रिपेयर करे, और पेपर में वही 25 क्वेश्चन आ गए जो आपने प्रिपेयर करे थे, कोई इष्ट देव भी सिद्ध करा था शायद साथ में। तो
आपने पूरा 90 पे 95 या 96 का स्कोर कर दिया जस्ट बाय प्रिपेयरिंग 25 क्वेश्चन. व्हाट अबाउट दैट चाइल्ड हु प्रिपेयर्ड द होल ईयर द होल टॉपिक बट ही then scored 90, 92. When you scored 95 by just studying those 25, you are not knowledgeable, but you have scored. अगर कोई कॉलेज आपको उस स्कोर के बेसिस पर ले लेता है 95, 96 जो भी आपने स्कोर करा और उस बच्चे को छोड़ रहा है जिसके 90 आए क्योंकि उसने पूरा सिलेबस करा था तो थोड़ा थोड़ा आपसे कम रह गया था वो, तो बच्चा वो बेटर है जिसके 90 आए थे. 96 वाला बेटर नहीं है, 96 वाला. लेकिन आपने कॉलेज में ले लिया. अब नाउ दिस चाइल्ड इज़ नॉट दैट कैलिबरस दैट वो SRCC या हिंदू में पढ़ेगा तो वो उस नॉर्म्स को पूरा कर पाएगा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो लोग मेंटेन करना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं इस टेस्ट की बहुत ज़रूरत थी. अब जो बच्चा जाएगा वो मार्क्स बेस्ड नहीं होगा. हो सकता है वो टीचर फेवरेट था उसको या ट्यूशन्स पढ़ता था या टीचर फेवरेट था तो उसको जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते थे वो पूरे मिल गए, ठीक है ना. दूसरा बच्चा थोड़ा नोटरियस था लेकिन नॉलेजेबल था लेकिन उसको उस प्रैक्टिकल में कम मिले. तो कहीं ना कहीं मार्क डिफरेंसेस होते थे जिसकी वजह से ये जो बच्चे की चॉइस होती थी कॉलेजेस में ये उस स्टैंडर्ड्स पर नहीं हो पाती थी. अब अगर एक CUET का टेस्ट बनाया है इन्होंने तो ये बहुत अच्छा है कि इसके बेसिस पर वो बच्चा ही मार्क्स जो स्कोर कर रहा है वो ही सिलेक्शन पाएगा और वो बच्चा उस कॉलेज में जाने लायक होगा क्योंकि जितने बड़े कॉलेजेस हैं वो बड़े स्कोर वाला बच्चा लेंगे. Now the child when he gets into that college he will be able to understand and grasp whatever is being imparted. तो इससे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो इम्प्रूव होंगे और वो बच्चा जो पूरे साल पढ़ता है उसको लिवरेज ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो लास्ट के 15 दिन पढ़कर शायद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पढ़कर ही उस लेवल तक पहले पहुंच जाता था. अब वो नहीं पहुंच पाएगा उस लेवल तक. Here few questions come in my mind like ये CUET जो एग्ज़ाम होता है कितने मार्क्स का रहता है, कितने हमें व्हाट मार्क्स वी हैव टू गो फॉर गेटिंग, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे उनकी मेरिट कुछ निकलती है इसमें. मेरिट निकलती है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50-50 in the English section, 50-50 in the 3 domain section and 50 marks for the last section which is a blend of quants which is mathematics, reasoning and current affairs. तो इस तरीके से टोटल जो पेपर है वो 250 नंबर का हो गया. तो 1250 में से नंबर मिलते हैं आपको. Every from this last year every question has been made compulsory. There was choice before that but now there is no choice, you have to attempt all. So that big enhances the quality of the paper. Now you have no choice. So that means you have to appear for all the questions and इस 1250 में से जितने नंबर आपके आएंगे उस हिसाब से जो कॉलेजेस हैं जैसे IIT में होता है जितने नंबर आए तो आप IIT मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, रुड़की जाएंगे, वो कॉलेजेस अपनी चॉइस करते हैं. ऐसे ही यहाँ पर भी 1250 में से जितने नंबर आपके आएंगे उसके बेसिस पर वो क्वालिटी के हिसाब से कॉलेज आपको बच्चे को सेलेक्ट करता है. तो CUET का सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे रहता है. सो आई शुड कंसिडर लाइक कि जो अभी तक हम प्रोसेस फॉलो कर रहे थे 12th तक जो बच्चे ने पढ़ाई की एंड हाई स्कूल और 12th की मेरिट के बेस पे हम उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देते थे कॉलेजेस में, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए CUET एग्ज़ाम लाया गया जिसमें ये देखा गया कि भाई नॉट दैट वन जो इंटर तक उसने किस तरह से आया not है, only that some things added to it. One another exam the person will have to go for performing, उसको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स के उसकी मेरिट के बेस पे the person will be getting the quality of college. But here one more thing comes, हमारा एक सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहा था. क्या हमें उस सिस्टम को ज़्यादा बेटर नहीं करना चाहिए था, उसके जगह हमने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की. इससे भी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर एक बर्डन बनता है एंड द पीपल हु आर फाइनेंशियली गुड. अब इसने एक नई और कोचिंग इंडस्ट्री को जन्म दिया जो फाइनेंशियल गुड है बच्चे जिनके पास अच्छा है सिस्टम, दे कैन गो फॉर सम हायर एजुकेशन कोचिंग, सो वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एज कंपेरिजन जो उन्होंने स्कूल पढ़ा उसके कंपेरिजन में. सर आज की डेट में जो कंपटीशन लेवल पर हम काम कर रहे हैं इसका लेवल उतना ऊंचा नहीं है CUET का. तो अगर वो बच्चा सिर्फ YouTube वीडियोस और मतलब इसके थ्रू भी अगर 1 घंटा रोज़ भी सिंसियरली लगाता है तो शायद उसको कोचिंग्स और इसकी मतलब बहुत स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है. ओके ठीक है ना. तो इंग्लिश तो वो पढ़ ही रहा है स्कूल में, थोड़ा सा उसको अगर टीचर इंटीग्रेट कर दे CUET से स्कूल लेवल पर ही तो शायद वो चीज़ करी जा सकती है. हो सकता है स्कूल वाले इतने सारे बच्चे पढ़ा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि अगर हम बाहर उस चीज़ को एक्सपेंसिव मानते हैं तो अगर हम कुछ टीचर्स रखकर या कुछ सेंटर्स के साथ कोलैबोरेट करके अगर स्कूल के अंदर ही हम वो एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में देने लग जाएं तो शायद वो एक्सपेंसिव नहीं होगा उस बच्चे के लिए और शायद हम उसी स्कूल फीस के अंदर ही उसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. तो कुछ स्कूल वालों को भी इनोवेटिव होना पड़ेगा ना सर. आज की डेट में ज़माना नहीं है कि हम सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन से बच्चे को सक्सेसफुल बना पाएँ.
and it brings a name to the school also. When the child gets into top merit colleges, then they also can highlight this and they also can feel proud about their child. So it's not a very expensive process because CUET is not a very difficult paper. तो इसके अंदर जो डोमेन तो वो पढ़ ही रहा है स्कूल में, बट ओनली द पैटर्न हैज़ टू बी चेंज, इट हैज़ टू बी अरेंज एज पर MCQs. तो थोड़ा टीचर अगर उस चीज़ को जो पढ़ा रहे हैं स्कूल लेवल पर अगर उसको इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं तो इसके लिए अलग से एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दैट जनरल टेस्ट दैट इज़ इन द लास्ट. उसके लिए भी अगर स्कूल एक रीजनिंग का टीचर रख लेता है तो शायद उस चीज़ को वहीं पर मैनेज करा जा सकता है. अगर स्कूल इस चीज़ को स्पेसिफिकली एकेडमिक्स से हटकर कॉन्सेंट्रेट करे तो उनका एकेडमिक्स ख़राब हो रहा है अगर उन्हें लगता है, तो वो हम जैसे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जहाँ पर हम अगर 2 महीने भी बच्चे को वहाँ स्कूल लेवल पर जाकर डिलीवर कराएंगे तो शायद जनरल टेस्ट उनका वहाँ प्रिपेयर हो जाएगा. तो इट कैन वर्क एंड इट कैन वर्क फॉर द स्टूडेंट्स. एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड देखिए, जहाँ आप भीड़ में से सेलेक्ट कर रहे हो, जब तक कि एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा तो सिलेक्शन प्योरीफाई नहीं कर सकते. और आज के कॉम्पिटिटिव ज़माने में जब तक बच्चा इन सारी चीज़ों के लिए नॉलेज नहीं रखता, सिर्फ उसे किताब में जो लिखा है वो आता है, आप भी जानते हैं और यू आर इन टू दिस फील्ड फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, यू नो विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स नथिंग वर्क्स. मे बी दैट यू गेट इन टू एजुकेशन, you have completed your MBA, but you can't speak. The MBA means where you have to guide. Management means where you have to get your things done by people. You can't explain, you can't speak, and of course you cannot be a good professional or even a good employee. तो कहीं ना कहीं एंट्रेंसेस के बिना, इन सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करे बिना, या तो CBSE को इनकॉर्पोरेट करे अपने करिकुलम में, या फिर ये टेस्ट मायने रखता है. और ये नॉलेज महंगी नहीं है. अगर बच्चा सिंसियर है, 1 घंटा भी रोज़ लगाता है और अगर YouTube रिसर्च करता है थोड़ी सी भी, अगर वो दिन भर मोबाइल में है और तो प्रोडक्टिवली भी यूज़ कर सकता है उसे, तो ये एक प्रोडक्टिव यूज़ है मोबाइल का, इस आजकल के सोशल मीडिया का, वेयर यू कैन गेट ऑल दीज वीडियोज़ एंड ऑल दीज थिंग्स लाइव देयर एंड यू कैन सेलेक्ट एंड गो थ्रू दैट. तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है. वी स्टिल फील सो. सर, आपने जो बहुत सारे पॉइंट्स बताए, ये अभी इस तरह से नहीं काम कर रहा है. ये चीज़ें हो सकती हैं डेफिनेटली. जो हमारा ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा है, इट्स समथिंग लाइक कि हम एक नाव में सवार हुए और हमें लग रहा है कि वो नाव टूटी हुई है, तो हमने क्या करा, सवार तो उसी में हो रहे हैं, लेकिन आगे हमने एक तख्ता चलाना और सिखा दिया बच्चे को कि भाई इस पे तैर के भी तू निकल सकता है. सो व्हाई वी आर डूइंग सो, हम उसी नाव को अच्छी तरीके से मेंटेन ना करें, है ना, कर सकते हैं. तो आपने जो पॉइंट्स बताया, इससे डेफिनेटली वो बेटर हो सकता है. दूसरा जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि शायद जब इस टेस्ट को बच्चा देता होगा तो कहीं ना कहीं कुछ, मेरे ख्याल से कुछ फी वगैरह भी इसका पे करता होगा. बहुत नॉमिनल है, मतलब इट्स जस्ट 1000 रुपीज़ और 800 रुपीज़ दैट वी हैव टू पे फॉर द CUET एग्जामिनेशन. तो इट्स वेरी नॉमिनल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लैक्स ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर दिस, तो कितना बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. लाख्स, हाँ वो तो है सर. तो कितना बड़ा, अगर पैन इंडिया लेवल पर अगर हम उसे मैनेज कर रहे हैं पेपर को और कंडक्ट करा रहे हैं, रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर एवरीथिंग इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट. तो लेकिन इट्स नॉट अ बर्डनेबल कॉस्ट. जहाँ 4-5 हज़ार रुपये हम क्लैट के एग्ज़ाम की बात करते हैं, हम पे करते हैं, और कितने लाखों बच्चा पेयर करता है, फिर रिजल्ट्स में दिक्कत रहती है, कभी कुछ रहता है, उस कंपैरिजन में तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है. तो मेरे ख्याल से एक ऐसा तो कुछ सिस्टम बनना चाहिए कि हम अलग अलग जो बोर्ड्स के हैं, यहाँ पे एक इशू ये भी था कि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरह की रैंकिंग और अलग अलग तरह से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, अलग अलग तरह से मार्किंग की जाती है. तो इस वजह से भी इशू आता है. जो अलग नई, जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं बच्चे एडमिशन लेने के लिए, तो पहले जैसे एक सिस्टम था कि UP बोर्ड के बच्चे अक्सर कम मार्क्स लेकर आते थे, CBSE ICSE बोर्ड के बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेकर आते थे. दैट वाज रियली द इशू, है ना. तो शायद हाँ, आई फील सो कि वो वाली प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से सॉल्व हो सकती है. बिल्कुल सॉल्व हो सकती है ना. वही जो आप कह रहे हो ना, कि जैसे आपको पता है कि UP बोर्ड था, किसी ज़माना था जब हम पढ़ते थे तब 17-18-20%, 28% रिजल्ट होता था. 60% लाना, मतलब 60% आपके UP बोर्ड में आया, दैट मींस यू वर इन ए फैबुलस स्टूडेंट फ्रॉम UP बोर्ड. सर मुझे मालूम है किस तरह से पास हुआ करते थे लोग. तो अब वो डिफरेंसेस भी सर दूर होते हैं ना. अगर हम कह रहे हैं किसी CBSE ISC और UP बोर्ड को अगर हम कंपेयर करें कि हम ISC वाले नंबर देते हैं, CBSE वाले भी देने लग गए, UP बोर्ड वाले को नंबर नहीं मिलते हैं, तो सर वो डिस्क्रिपेंसी भी इस एग्जामिनेशन से दूर हो जाती है ना. नाउ दिस इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म where every child has the same resources and they can appear for the same examination and score. अब उनके एकेडमिक मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम उस लिहाज से भी थोड़ा सा तो बेटर ही है कि कहाँ UP बोर्ड में जहाँ नंबर नहीं आते हैं, या किसी भी एग्जामिनेशन को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यहाँ नंबर नहीं मिलते, तो हम उससे पार आ जाते हैं और यहाँ पर हम अलग तरीके से काम करते हैं. अ वेरी फेमस एजुकेटर फ्रॉम इंडिया एक्चुअली, और वन ऑफ द स्टेटमेंट ही वेंट फॉर गिविंग एंड रियली आई अप्रिशिएट हिम. उन्होंने बोला कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ें मिसिंग हैं.
एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। तो हम कितना इस बात के साथ, क्या आपको लगता है कि हाँ कहीं कुछ ऐसी चीज जा रही है, हकीकत है? सर आप देखिए ना, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट दीज फॉरेन कंट्रीज वेयर वी रियली अप्रिशिएट देयर एजुकेशन स्ट्रक्चर, दे डोंट हैव बुक्स. The children are given research work from the school level itself. They are given projects. They are given real life projects. They are given case assignments. They don't study from the books that we normally do here in India. And then we criticize कि स्कूल वाले बेच रहे हैं, बैग भी बेच रहे हैं, फलाना भी बेच रहे हैं, तो वो सब है very much commercialize everything. कमर्शलाइजेशन, ड्रेस भी यहीं से लोगे, बुक्स भी यहीं से लोगे. वो बुक्स है ही नहीं सर फॉरेन यूनिवर्सिटीज जितनी बड़ी बड़ी हैं. Even my daughter is doing it from Symbiosis. She does not have a book structure. The teacher teaches from a PPT, PowerPoint presentation, and then she has some research websites. उसमें से बच्चा केस स्टडीज और वो अपना मैटर खुद प्रिपेयर करता है. टीचर इस बात पे इवैल्यूएट नहीं करता कि वो किताब से कितने पॉइंट लेकर आया. वो इस बात पे इवैल्यूएट करता है कि बच्चे ने कितनी रिसर्च करी और कौन सी ऐसी केस स्टडी लिखी है जो दूसरे बच्चे ने नहीं लिखी है. नंबर इस बात के मिलते हैं. So you can't learn those 4 points and say that I'm knowledgeable. Maybe I have a 5th point in my mind which is much more relevant than what it was written in the book. तो ऑफ कोर्स उस तरीके का एनवायरनमेंट स्कूल्स में होना चाहिए. तो CBSE, ISE, मतलब इन बोर्ड्स को भी थोड़ा सा बच्चे का दिमाग चलाने के लिए इस तरीके के एक्सरसाइजेस को भी 20 नंबर का पार्ट बना. आप अभी इनिशियली आप उसको पूरा एक साथ नहीं चेंज कर सकते. तो एक अगर बोर्ड में के एग्जाम में 20 नंबर का सेक्शन हर एक पेपर में इस तरीके का, जहाँ इंस्ट्रूमेंटल, जहाँ बच्चे को अपनी खुद की नॉलेज लगानी हो, अगर ऐसा सेक्शन डालें तो शायद एजुकेशन में सिस्टम भी लाया जा सकता है और एजुकेशन को प्रोडक्टिव भी बनाया जा सकता है और स्कूल लेवल से बनाया जा सकता है. बिकॉज बेसिक्स वहीं ग्रो करते हैं. आप अगर MBA भी इम्पार्ट करें, वहाँ जाकर बच्चा कहता है यार ये क्या आ गए, हम कहाँ पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं थी पहले कभी. तो वो अगर हम स्कूल लेवल से 8 स्टैंडर्ड से देना शुरू कर दें 20 नंबर का एक, मतलब यूज़ योर ओन ब्रेन. यू डोंट हैव दिस इन बुक्स. जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, वो आएगा पेपर में. अगर बच्चा वहाँ से उस चीज़ पर काम करना शुरू करता है तो दे विल कम आउट एज ब्रिलियंट किड्स. फिर इंडिया कहीं किसी से पीछे नहीं होगा. आप आज देखिए ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज पे, जो बड़े से बड़ा कॉलेज हो, आगरा या कहीं का भी, आप 3rd ईयर का बच्चा बाहर निकल कर आ रहा है, आप उससे कहिए कि सर तुझे मैं आज जॉब दे रहा हूँ 20,000, 25,000, 30,000 की. कॉमर्स का बच्चा है तो मेंटेन माई अकाउंट्स. आप देखिए 10%, 15% बच्चा भी मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है. बहुत बड़ी बात है. तो फिर हम कहते हैं कि बेरोजगारी. तो भाई आपको आता नहीं है तो रोजगार मिलेगा कैसे? When you talk about employability, when you talk about employment, you don't have that skill to acquire that job. So how will you say that you are jobless? You are skillless. That is why you are jobless. True, very true. अगर आप एक गोलगप्पे वाला भी अपने गोलगप्पे ठीक से बनाता है तो लाइन लगी हुई है, वो एक MBA चाय वाला और MBA गोलगप्पे वाले बन सकते हैं और पूरी उनकी चेन बन सकती है. तो आप ग्रेजुएट होकर भी अगर उस लेवल पर नहीं कर सकते हो या पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी आपके अंदर नॉलेज नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये नॉलेज तो वहीं से, अगर एजुकेशन सिस्टम को वहीं से उठा के लाया जाए और उस इंटीग्रेट करा जाए बाहर के देशों से. जैसे हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाई 2020, कितनी जगह एप्लीकेबल है ना. आज तक हम 26 में आ गए. उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किस तरह से हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, जब तक वही GST है, अगर हमने GST लगाया और वो पूरे इंडिया में पैन एप्लीकेबल है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट और इस सबका फायदा उठा सकते हो, तब तो वो काम करता है. लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाई और लिबर्टी दे दी कि आप फॉलो करो ना करो या कर लेना आगे चलकर. तो भाई ऐसे सिस्टम काम धीरे धीरे अगर करेगा तो उसके इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे. तो अगर आपको इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस देखना तो इट हैज़ टू बी मेड मैंडेटरी. ठीक है, इट विल बी अ पेन फॉर सम ईयर्स, 2 years, 3 years, फॉर दोज पीपल जिनके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं है, वो इसको इनकॉर्पोरेट करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फील करेंगे. लेकिन अगर प्रेशर नहीं होगा कि करना है तो कोई करेगा ही नहीं. और कोई भी सक्सेस बिना प्रेशर के नहीं आती. आप देखिए हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स है ही नहीं, या हैं तो वो कीपैड वाले. वो बच्चे ने डेलिबरेटली वही रखा हुआ है. और आजकल तो आप पैदा हुए बच्चे को भी मोबाइल्स पकड़ा देते हैं, उस पर यूट्यूब वीडियो चलाकर कार्टून पकड़ा करके आप अपना टाइम बचा रहे हैं. तो भाई ऐसे कैसे बच्चा ग्रो करेगा ना. तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो चीज़ों को रिफाइन और सिस्टमैटिक तो बनाना पड़ेगा. तो एजुकेशन और सिस्टम को इंटीग्रेट करना है तो ये कहीं ना कहीं हमारी, आपकी एज अ टीचर भी जिम्मेदारी बनती है, थोड़ी पेरेंट्स की, और बच्चे को तो करना ही पड़ेगा. तो पेन तो है, तो ये पेन तो हमको भी लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें सिस्टम में आएंगी. इस बात को आप कितना कंसिडर करते हैं कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए कि उन्होंने अपने बच्चों के करियर के लिए उनको एक डायरेक्शन देना या
एक जिम्मेदारी लेना, इस वाले पार्ट को छोड़ ही दिया है। मतलब उन्होंने दे जस्ट स्टार्ट थिंकिंग हम पे कर रहे हैं, बस बात खत्म हो जाती है हमारी, इसके बाद हमें सोचना ही नहीं है। कैसा है आप अखबार पढ़ें तो रोज़ एक कोई ना कोई कंटिजेंसी की न्यूज़ होती है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो IIT मुंबई में 4था-5वां सुसाइड था। ये क्या है? प्रेशर ही तो है, पेरेंट्स क्रिएट करें, भाई हमने पैसे दिए तुम्हारे लिए, लोन्स लिए तुम्हारे लिए, इतना कुछ करा। कहीं ना कहीं आप शुरू से ही अगर बच्चे के साथ आधा घंटा, या मैं कह रहा हूँ ठीक है आज की डेट में भाई अगर बस लास्ट में रिजल्ट चाहिए कि मार्क्स क्यों ज़्यादा नहीं आए, मार्क्स कम कैसे रह गए। आप उस बच्चे से काउंसलिंग करिए ना। आप हफ्ते में, ठीक है मैं समझता हूँ कि माता पिता दोनों को काम करना पड़ता है टू मेक द एंड्स मीट। मतलब आज की डेट में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि भाई जब तक माता पिता दोनों काम नहीं कर रहे वो घर बहुत अच्छी तरह नहीं चल रहा। तो आप दोनों काम में एंगेज हैं, या माता जी भी घर के काम में एंगेज हैं, पिताजी बाहर से कमा के ला रहे हैं, वॉट एवर, तो आपको बच्चे के साथ 2 घंटे कम से कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार उसके साथ उसकी बुक्स देख लीजिए, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कहाँ, डांटिए नहीं, उसको देखिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ पर हमें काम करना है उसके साथ। थोड़ा सा अगर समय, पेरेंट्स टीचर को फीस देकर ये सोचते हैं कि भाई हो गया हमारा काम, हमने दे दिया, अब या स्कूल जा रहा है वहीं कर लेगा, या ट्यूशन टीचर को दे दिया वो देखेगा। अगर आप उसकी प्रोग्रेस को एक मॉनिटर करते रहें, वीकली भी अगर मॉनिटर करें, तो रिजल्ट्स उस लेवल पर पहुँचेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो भाई इट्स अ 3-वे प्रोसेस। मतलब ठीक है, we as educators are very important, but there has to be a contribution of the parents। 50% तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर 30% हम पे डिपेंड करता है तो 20% पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि आफ्टर पेइंग द फीस ऑल्सो दे शुड सी व्हाट द चाइल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन दे शुड कम टू द सेंटर, दे शुड डिस्कस विद द टीचर कि कैसे इसको इम्प्रूव करा जा सकता है। बच्चे को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो शायद रिजल्ट्स वो आएंगे जो शायद हमने एस्टिमेट भी नहीं करा होगा। तो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़रूरी है। लेट्स लुक फॉर दिस फैक्ट। अभी हम बात करते हैं, और एक टर्म तो बहुत आजकल इस्तेमाल में आता है, जेन जी, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है, और अक्सर दूसरी जनरेशन के लोगों की तरफ से कुछ इस तरह के कमेंट मारे जाते हैं कि भाई ये वो वाली जनरेशन है जो कि कंट्रोल में है ही नहीं है, इसको मतलब है ही नहीं है दुनियादारी से, ये मतलब बहुत सारे टॉन्ट्स मारे जाते हैं आई वुड से। लेकिन अगर हम इनकी तरफ देखें, जनरेशन ही किसी कंट्री को डेवलप करने का काम करती हैं, जो भी नई आने वाली हैं, बट हम उनको क्या दे रहे हैं, हमें भी थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए। हम जब बात करते हैं स्कूल्स में, सो इट्स ऑल अबाउट कि वहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ों को कॉमर्शलाइज कर दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर चीज़ के लिए वही वहाँ पे पैसे हैं, वही इसके लिए स्पेंड करिए, इसके लिए स्पेंड करिए, इसके लिए स्पेंड करिए। देन वी कम कि अगर बच्चे के मार्क्स ठीक नहीं आ पाते हैं तो स्कूल जो होता है वो पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है। इवन इट इज़ उनसे लेटर्स लिखवाए जाते हैं कि भाई नेक्स्ट क्लास में हम तब प्रमोट करेंगे जब आप अंडरटेकिंग ले रहे हैं, आप जिम्मेदारी लीजिए कि बच्चा हाँ आपका अच्छा पढ़ेगा। तो मतलब स्कूल क्यों भेजा जा रहा है अगर पेरेंट्स को अंडरटेकिंग लेनी है तो। दूसरा, पेरेंट्स इस बात को सोच लेते हैं कि भाई हमने तो फीस दे दी, हम तो अच्छी खासी फीस दे रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो बाकी तो हमारा काम पैसा कमाना है, बस आपको वहाँ पे। सो पेरेंट्स आर नॉट गिविंग टाइम, स्कूल कह देता है पेरेंट्स अंडरटेकिंग लेंगे, बाकी पेरेंट्स का ध्यान वो होता भी है, अभी ज़रूरत बन गई, कोई पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और स्कूल भी टोटली इस समय पैसा कमाने में लगे हुए हैं। फिर हम इस वाली बात को कहते हैं कि भी आज का जो बच्चा निकल के आ रहा है स्किलफुल नहीं है। लाइक हकीकत है नहीं है उसके अंदर स्किल्स, लेकिन हम सच में क्या स्किल्स देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमारा फोकस कहीं और ही लगा हुआ है। आज हम NEP की बात करते हैं, न्यू एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में दिया जा रहा है, कॉलेजेस में दिया जा रहा है। यू कुड सी दैट इजीली कि बहुत सारी जगहों पे इट्स ऑल्सो अगेन द सेम बर्डन ऑन द पीपल। जहाँ पे अब मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर इसके भी कुछ ना कुछ चार्जेस ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, और लास्ट में बस वो जो उनको मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसमें उसके मार्क्स लिख दिए जाते हैं। कितनी जगह पे NEP की क्लासेस सच में चल रही हैं, है ना। एजेंसीज को, प्राइवेट एजेंसीज को ये काम दे दिया जाता है आपको चलाने हैं, और वहाँ पर भी द करप्शन इज ऑल अराउंड। बहुत सारे लोगों को पे आउट किया जाता है, उससे बस काम बन जाता है, सर्टिफिकेट्स के ऊपर लिख जाता है। एज आई डू हैव द नॉलेज, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे। तो नई चीज़ें अडॉप्ट करने के चक्कर में बर्डन तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के ऊपर आ रहा है, पर चीज़ें बदल कितनी रही हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मतलब ये दिक्कत तो है ही है। लेकिन आप ये कहें कि बच्चे के अंदर स्किल्स नहीं, बच्चा बहुत शार्प है। बच्चा शार्प है। आप देखिए 2 साल के बच्चे भी मतलब क्या जो बोलते हैं, मतलब किसी ने नहीं सिखाया उन्हें, और आप ऐसे वर्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे जो आपने खुद नहीं सोचे होंगे कि ये बच्चा इस उम्र में ये बोल सकता है। तो स्किल्स, टैलेंट, जेन ज़ी की बात करें तो दे हैव एवरीथिंग।
But only thing is that it has to be molded to a direction where it could create results. It is all being used and misutilized in, doing things which are not desirable. तो कहीं ना कहीं एज एजुकेटर्स ये हमारी एज पेरेंट्स ये उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की जो जेनजी में अपने आप को काउंट करता है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एनर्जी को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लें तो वो प्रोडक्टिव भी होगी, स्किल्स डेवलप करने में भी काम आएगी और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नेशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने में काम आएगी. तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ पर सोचना चाहिए कि हम उस चीज़ को, अगर जेनजी है तो दैट डज नॉट मीन दैट गिव्स मी ऑल द राइट्स टू बी गोइंग आउट ड्रिंकिंग स्मोकिंग, दैट डज नॉट मीन अ जेनजी. नो, डेफिनेटली जेनजी मीन्स समवन हु हैज़ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द नेशन टू द लेवल वेयर वी थिंक कि हम इस देश में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया आज जहाँ होना चाहिए वो हम पे डिपेंड करता है. आज हम अपनी खिड़की खोल के कार की बॉटल बाहर फेंक देते हैं खाली, जब दूसरा फेंकता है तो हमें बुरा लगता है. तो भाई जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक देश, ज़माना या और लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड. ऑफ कोर्स, वेरी करेक्ट वर्ड्स. हाँ, तो बी द चेंज फर्स्ट, मतलब पहले आप अपने अंदर वो चेंज लाने की कोशिश करें, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाले से भी आप वही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो. तो वो चीज़ नहीं आ रही है. हम हर चीज़, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स देयर देयर राइट्स. आई हैव दिस राइट, बट nobody understands the duty that you have to fulfill those rights. Once the people understand that there should be they should fulfill their duties, so that rights come after duties. तो जहाँ ये समझ में आ जाएगा आज के लोगों को, आज के बच्चों को, वहाँ चीज़ें अपने आप सिस्टम पे आ जाएंगी. ग्रेट लाइन सर, आई रियली अग्री विद दैट पार्ट. ड्यूटीज़ अगर हम इनको समझ लें, नॉट बच्चे, अगर हम सभी लोग इस बात को समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सिस्टम में आ जाएंगी, चीज़ें बिल्कुल ट्रैक पे आने लग जाएंगी. डेफिनेटली. आपने बताया लाइक यू हैड बीन इन दिस फील्ड, आप कॉमर्स के साथ ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक बात बताएं, लाइक कोई बच्चा जब इस फील्ड में जाता, माई डॉटर इज ऑल्सो देयर, शी हैज़ चूजन कॉमर्स एज सब्जेक्ट एंड शी इज़ गोना टेक एग्जाम्स ऑफ 12th क्लास. तो जब बच्चा इसमें जाता है तो क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए हो सकती हैं और किस किस चीज़ों को उनको ट्राई करना चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें बताएं. सर, अगर पहले चॉइस करते थे ना, तो पहले जो चॉइस होती थी, पास्ट की बात करें तो द चॉइस वाज बेस्ड ऑन मार्क्स दैट यू स्कोर इन योर 10th स्टैंडर्ड. 11th में आप वो चूज़ करते थे. 90, 85, 90 प्लस हैं तो यू आर अ साइंस का है. 70, 75 प्लस हैं तो यू आर अ कॉमर्स का है. 50, 55 है तो अभी तो पास ही नहीं होगा, 8 दिला दो. आज की डेट में अभी पिछले साल का जो रिजल्ट था, 6 बच्चे थे लखनऊ से जिनके 100 परसेंटाइल थे. 100%, 6 सब्जेक्ट्स, 100 out of 100 in all those 6 subjects. वो 6 के 6 बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में गए बिकॉज दे वांटेड टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज. तो आजकल बच्चा जो 100% वाला है ना, वो भी ह्यूमैनिटीज़ में जा रहा है, वो साइंस नहीं ऑप्ट कर रहा. बिकॉज ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो करियर काउंसलिंग सेशंस कराएं. इट्स नॉट दैट करियर कि भाई एक कॉलेज को बुला लिया, वो कॉलेज अपने कोर्सेज बताएगा, कोर्सेज की बात नहीं हो रही है. प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स जो उन बच्चों को फील्ड्स के बारे में बताए कि IIT इज़ दिस, एंड व्हेन यू गेट इनटू IIT यू नीड टू हैव दिस इन क्वालिटीज़ इन यू सो दैट यू कैन बिकम एन IITian. और नीट करने के लिए ये क्वालिटी. आप बच्चा कैसे चूज़ करता है, अगर पेरेंट चूज़ करते हैं तो अपना सपना थोपते हैं बच्चे के ऊपर. मैं करना चाहता था, पैसे नहीं थे मेरे माँ बाप के पास, मेरे पास है, मैं तुझे बनाऊंगा. पहले बच्चे को जज करिए. या वो चूज़ करते हैं शर्मा जी की बेटा तो भाई पता नहीं IIT कर लिया उसने, वहाँ पहुँच गया. गुप्ता जी की बेटी वो कर रही है, तू भी कर ले. दिस इज़ नॉट द वे दैट यू चूज़. गिव दैट चाइल्ड द लिबर्टी टू चूज़ एंड देन कीप ऑन मॉनिटरिंग वेदर द stream chosen is working for the child or not. Because there is in 11th standard itself, if you make a choice कि भाई there has to be some change, you can bring that change. And science, commerce, humanities, today if the child has that skill, the child has that he has learned that well, he can present himself, there is no limit to what he can earn from any field. आप पहले जो सिर्फ IIT नीट और CA जानते थे, CA भी अगर एक बार में आप पूरा क्वालिफाई करते तो 1 लाख रुपए सैलरी से स्टार्ट होता है. दो देयर इज़ नो एंड पॉइंट टू इट. आप कितना कमाते हैं, 5 लाख 10 लाख, वो कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर हम आज की डेट में क्लैट के थ्रू वो एक लॉयर बनते हैं, BA LLB या BBA LLB करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट ही सर अगर देखेंगे तो NSLI बैंगलोर दे हाईएस्ट पैकेजेस आर अराउंड 60 lakhs. तो 5 लाख रुपये महीना फॉर अ स्टार्टअप, फॉर अ जस्ट स्टार्टअप फ्रेशर. तो अगर आप एवरेज की भी बात करेंगे तो 22-24 लाख का स्टार्टिंग एवरेज है. 2 लाख 2.5 लाख का जॉब है. तो वाई नॉट, इफ़ आई एम टॉकेटिव, आई एम एक्सप्रेसिव, तो वाई नॉट चूज दैट फील्ड. तो यू कांट जस्ट बी, पीपल डोंट हैव नॉलेज, तो दे स्टिक
to 3-4 fields of choices that they do have. बच्चा नहीं पढ़ रहा, पुट हिम इनटू होटल मैनेजमेंट. अगर आप जेपी की बात करें या अमर विलास की बात करें या फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स वगैरह को भी 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो IHMs में 30,000 32,000 बच्चा बैठता है, 19,000 सीट्स हैं, पता ही नहीं है लोगों को. तो सी द 50% रिजल्ट. कौन से एग्जामिनेशन में 50% रिजल्ट होता है? देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड NCHMCT, यानी नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड क्यूलिनरी टेक्नोलॉजी. तो get into those kind of exams where 50% marks are for the practicals that you do in hotels, 50% marks are for the theoretical knowledge that you acquire. total मिलाकर अब तो ये गंवार बच्चा भी बात, जिसको काम करने में मज़ा आता है, पढ़ना लिखना नहीं चाहता, तो 10 15 20% वहाँ ले आएगा और यहाँ 50 में से 40% ले आएगा, क्योंकि काम तो वो करना जानता ही है. तो मिलाकर 60% हो जाएंगे, वहाँ से भी वो ग्रेजुएट करता है तो भी वो कुछ अर्न कर सकता है. तो देयर इज अ फील्ड फॉर एवरीबडी. It's not that only commerce, only humanities or only science. But when we come into commerce, then of course CA, CS and CMA are the first preferences that people do have. But IPMAT, there's an exam which takes you to 7 IIMs. IPMAT. That's an integrated program, BBA, MBA integrated program. So 7 IIMs. I have listened once CMAT, so it's related to that? CMAT is after graduation. Okay. That's a kind of MBA entrance exam. Okay. CAT, SNAP, NMAT, ZAT, CMAT, they are examinations after graduation to put you into 2 years of MBA. It goes with 5 years integrated program also? Yeah, IPMAT is a 5-year, it is integrated program on management aptitude test. Okay. So this is a 5-year program where a child does BBA plus MBA together. He does not have to appear for CAT or any other MBA entrance exam after graduation. After 12th itself, he has to go into that. Now commerce means you have to be into management. Now here also, when you talk about IIM Indore, the last year placement was 1 crore for a fresher. And of course, these programs from IIMs are a little expensive, 30,000-35,000, but you get an easy educational loan for these kind of programs, and where the child pays on his own pockets. He's not a burden on the parents. Once you show that you have been selected and you have a call letter from there, any bank will finance that money. If the parents are capable, they can start paying that EMIs, or after 5 years, 1 year is a moratorium, and then from the 6th year, for next 8 years, the child can pay from his own money. The loan is sanctioned in his own name. Now, you can get into these kind of careers where the average salary packages are 26-28 lakhs. So these are options for commerce students which are unexplored, where people are not thinking about this. And that, one thing is very important: sincerity with whatever you have chosen. If you are disciplined, if you give I am not saying you have to study the whole day. It's no concept. But divide your day into a pattern where you have time for yourself. यानी आप योगा करिए, आप वॉक करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप एक पढ़ाई का टाइम भी फिक्स करिए कि ये टाइम मेरा पढ़ने का. उस टाइम पर नो मोबाइल्स, नो सोशल मीडिया. If you can't control yourself, give your phone to your mother or father, or keep it in a locker. I will not use it for 3 months. 2 years of social media and your friend time, that is of course available to you. You have Sundays, you have, अगर हम बात करें तो Sundays 52 हो गए हमारे पास, 30 छुट्टियाँ 30 त्यौहार की हो गई हमारे पास. 80 दिन तो हम वैसे भी स्कूल नहीं जा रहे ना. तो आप, और उसके बाद समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, अगर हम वो की बात करें तो भाई 150 दिन की तो स्कूल की वैसे भी छुट्टी ऑफ हो जाता है. तो आप उन 150 दिनों में 2-3 घंटे अपने फ्रेंड्स को दे दीजिए ना. मतलब हम आपका सोशल नेटवर्क भी नहीं काट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर नहीं होंगे तो ये फ्रेंड्स जो अच्छी पोजीशन पर होंगे ये आपसे वैसे ही किनारा कर लेंगे ना. आप खुद ही नहीं उनके मिंगल कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए सिंसियर होना पड़ेगा. बाकी चीज़ें तो इट कम्स विद दैट ओनली. तो कॉमर्स में यू हैव एम्पल स्कोप, ह्यूमैनिटीज यू हैव एम्पल स्कोप, साइंस यू हैव एम्पल स्कोप, बट चूज अकॉर्डिंग टू you are the best judge of what you are. Analyze your qualities. Work it out on a psychometric test if you want to, or sit with a counselor for 2-3 times for half an hour or 1 hour like me, and then let us give you options where you can fit them with your qualities, and you are the best judge for yourself. Make a choice and put your 100% efforts into it, and of course you will be a successful man one day. Sir, we still have this, when the parents are not aware of all these things,
हाउ अ स्टूडेंट कैन बी, जो अभी बिल्कुल नया है, उसको अभी शेप मिल ही रही है उसके करियर को लेकर, उसके माइंड को लेकर, उसके ब्रेन को लेकर। नॉर्मली अगर हम इंटर पास करने तक की बात करते हैं, सो बाय द एज ऑफ 16 और 17 दे गो फॉर पासिंग आउट देयर इंटरमीडिएट। तो एक ऐसा चेंज वाला टाइम होता है उसकी लाइफ का भी, देयर सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग, सो मेनी थिंग्स आर गेटिंग इनटू हिज लाइफ और हर लाइफ। तो हियर क्या इस तरह के इनिशिएशन और इनिशिएटिव्स कुछ स्कूल्स को लेने चाहिए जिससे बच्चों को, ये जो आपने काउंसलिंग वाला पार्ट बोला, अभी जो आपने नॉलेज दी है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है, आई डोंट थिंक सो इन एनी स्कूल दीज थिंग्स आर बीइंग टोल्ड टू द टीचर्स को भी नहीं पता सर। हम जब बैठ के बात करते हैं तो वी आस्क दिस हाउ द किड विल गो फॉर थिंकिंग ऑन दिस, उसको कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर तो कुछ फोर्स किया जा रहा है ना कि तुझे इंजीनियर बनना है या तुझे डॉक्टर बनना है, 2-3 चीजें बता दी जाती हैं बस। तो आई थिंक दीज ऑल द थिंग्स शुड बी टोल्ड समवेयर। और 10th एक वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पे से 9th या 10th से बच्चा डिसाइड करने लग जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे कोचिंग चल रही हैं जहाँ पर हम देखते हैं नीट की तैयारी करा रहे हैं या जी की तैयारी करा रहे हैं, वो 8th क्लास से बच्चों को लेना तो स्टार्ट कर देते हैं अपने कोर्सेज के लिए। वो बस बता रहे हैं यही एक करियर हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। बट करियर काउंसलिंग कितनी हो रही है? मेरे ख्याल से 8th क्लास से ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए कि बॉस ये सारी चीज़ें भी हैं। सर 8, 9, 10th में बच्चे को एक कॉमन करिकुलम पढ़ाना चाहिए जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो। आप उसे पहले से 8वीं से नीट के लिए नहीं प्रिपेयर कर सकते। 11, 12 इज सफिशिएंट इनफ टाइम फॉर इफ द चाइल्ड वांट्स टू क्वालिफाई फॉर नीट और IIT। उसका तो बाकी तो फिर ब्रेन वॉश ही हो गया ना, उसको तो पता ही नहीं बाकी कुछ। उसे अच्छा इंसान बनाइए, उसे नॉलेजेबल बनाइए ना, कि ग्रास्पिंग पावर बढ़ाइए उसकी, उसको रीजनिंग और उस चीज़ें सिखाइए, मैथमेटिक्स और बायो का बेसिक्स बताइए। 8, 9, 10th is the time when the child's brain, understands, develops in a manner where he can make a choice. So give him something where he can use, start using his brain. फिर उसे अपने आप चॉइस करने दीजिए 10th के बाद। तो अगर स्कूल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पेरेंट्स को एक काउंसलिंग सेशन तो ज़रूर फिक्सअप करना चाहिए। आप इस बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी फैमिली लाइनअप में सबने कॉमर्स ली थी तो आपका बच्चा कॉमर्स लेगा, या आपके घर में सब डॉक्टर है तो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। हमारे पास कितने बच्चे आते हैं डॉक्टर्स के जो IP मैट और ये इस तरीके के क्लैट के एग्जाम्स करते हैं, बहुत सारे। कई ऐसे बच्चे आते हैं जो नीट वो 3-3, 4-4 साल दिया, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस बहुत ज़्यादा है, तो दे हैव नाउ कन्वर्टेड। तो अगर हमने पहले से सोचा होता तो बच्चे के ऊपर अब ये प्रेशर है कि भाई 3 साल उसने नीट दिया, अब वो चेंज कर रहा है यहाँ पर, उसके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो वो प्रेशर बिल्डअप होता है ना, तो वो चीज़ प्रिपेयर नहीं होती। तो 8, 9, 10th इज़ टाइम व्हेन ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हमको, स्कूल को करनी चाहिए या हमको करनी चाहिए। 10th के बाद जब वो चॉइस कर ले कि मेरे को अब ये समझ में आता है कि मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ, मैं अपनी क्वालिटीज एनालाइज करूँ, अब उसके ऊपर उस स्पेसिफिक फोकस फील्ड पर काम करना पड़ता है। आप 8, 9, 10 से नहीं पढ़ा सकते। तो ये इंस्टीट्यूशन जो ले रहे हैं ठीक है, फिर अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन की पहले से उसके दिमाग में भर दो कि नीट करना है या IIT करना है या क्लैट करना है या फलाना करना है। 8, 9, 10 में बच्चा ये डिसाइड करने के मूड, टेम्परामेंट, क्वालिटी में होता ही नहीं है। आपने बोला ना इतना छोटा है वो डिसाइड नहीं कर सकता। एंड पेरेंट्स कुछ थोप रहे हैं तो शायद वो बच्चा नर्वस या डिप्रेशन में ही जाएगा कि मेरे से हो नहीं रहा और मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा है। यार एक्सपेक्टेशंस इज माई चाइल्ड इज सेटल इन अ पोजिशन वेयर ही अर्न्स दैट मच कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कल को मेरे सामने हाथ फैला के खड़ा होता है बड़ा होकर के कि यार पापा कुछ दे दो, वो नहीं होना चाहिए। तो वो तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में भी उतने ही ऑप्शंस हैं हमारे पास। आज बच्चा निफ्ट और NID से भी पास आउट होता है तो वो आराम से 1.5-2 लाख रुपए कमाने लायक होता है। तो हम इस डिज़ाइनिंग, हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम उस मॉडलिंग और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, हम ऐसी कई चीज़ों की बात करें। 7 तरीके की डिज़ाइनिंग होती है। अब वो डिज़ाइनिंग में भी करियर है। मतलब आप बात करें तो देयर आर सो मेनी फील्ड्स। मैंने होटल मैनेजमेंट बताया, मास मीडिया बताया, ये जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता या उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम, उनके लिए भी फील्ड्स हैं। तो आप 8, 9, 10 से चूज़ मत करने दीजिए ना, मतलब आप उसको फोर्स मत करिए। आप ये करिए, आप उसके ओवरऑल स्किल्स को या मेंटल लेवल को बढ़ाने की कोशिश करिए। 10th के बाद उसको स्कोप बताइए कि बेटा इन सब चीज़ों का स्कोप ही है, लेट हिम मेक अ चॉइस ऑन हिज। काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड एक्चुअली मेरे ख्याल से। तो पेरेंट्स करें, स्कूल के लिए तो मैंडेटरी होना चाहिए कि वो करें। अब वो and even parents also should be given some kind of counseling because they are not aware. पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिकॉज बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम टीचर्स, पेरेंट्स से भी ज़्यादा टाइम टीचर्स के साथ बिताता है। अगर स्कूल की बात करें तो 6 घंटा बच्चा स्कूल में है। क्लास टीचर, हर टीचर के 2-2 घंटे के पीरियड होते हैं, तो हर रोज़ लगभग अकाउंट्स या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, तो इनमें 2-2 घंटे बच्चा पढ़ता है, या मैथ्स या फिजिक्स, ये इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इन टीचर्स के टच में बच्चा रोज़ 2 घंटे होता है। अगर इन टीचर्स को पता है कि इनको कैसे गाइड करना है, अगर वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और लग रहा है कि इस बच्चे के अंदर इंस्टिंक्ट नहीं है, तो उसको तेरे इतने नंबर आते तू IIT में चला जा, तेरे इतने नंबर आते तू नीट में चला जा, वो नहीं।
तेरा माइंड सेटअप, तू फिजिक्स पढ़ जरूर है लेकिन तेरा माइंड सेटअप इस तरीके, यू आर वेरी कैलकुलेटिव, यू आर दिस थिंग, तो यू शुड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इफ यू आर लाइक, if you can think this, you are more logical, तेरी argumental skills अच्छे हैं, तो get into law. You can't study, मतलब ठीक है, you are not made for studies, but अगर तुम practical को theoretical के साथ blend कर लो, शायद you can do something good. तो get into culinary arts, cook. आजकल शेफ देखिए ना, सारे आदमी हैं, उसमें क्या हो गया, मतलब that's not a wrong choice. That's really not the problem. Even women can do it, तो why not men can do it? मतलब it's, the world goes that way. तो आप ऐसी करियर्स के बारे में आप भी नहीं जानते होंगे तो आप कैसे गाइड करेंगे. सेकेंड कम्स पेरेंट्स, वेयर बच्चा 4-5 घंटे शाम को शायद खाने के टाइम पर या सोने के टाइम पर पेरेंट्स के साथ होता है, तो उनको भी पता होना चाहिए. तो ये तो बहुत ज़रूरी है. और मेरे ख्याल से तो हर स्कूल के पास अपना एक काउंसलर अपॉइंटेड ही होना चाहिए, जो और एक बार में नहीं होती काउंसलिंग की. एक बार बुला लिया, हमारा काम खत्म हो गया था, हमने एक बार कराई थी. बच्चे को 4-5 बार वो काउंसलिंग सेशन मिलना चाहिए, या बच्चे को 2 घंटे के लिए वो काउंसलर हफ्ते में 3 बार तो कम से कम स्कूल में बैठा मिलना चाहिए, जहाँ बच्चा जा करके उसके रूम में अपॉइंटमेंट लेकर 4 चीज़ें 4 बार 5 बार डिस्कस कर सकता है. तब चॉइस होगी. आप एक बार में किसी को कैसे समझा सकते हो कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है. इवन नीट IIT की भी बात कर रहा हूँ, तो आप एक बार में नहीं समझा सकते कि इट इज़ मेड फॉर यू और नॉट. इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. So these counselors, they should be appointed. Yeah, school should get into touch with our kind of counselors where, and एक कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए कि हम वहाँ 2 घंटे उनको अवेलेबल रहे बच्चे के लिए, जहाँ पर हम बच्चा हमारे पास आएगा 15-15 मिनट, हम उसको सेशंस देंगे 3-4-5 बार, तब जाकर हम उसके लिए सही चॉइस कर पाएंगे. तो ये तो स्कूल्स को सोचना चाहिए. इट्स नॉट ओनली मिंटिंग मनी दैट, मतलब चाइल्ड इज पेइंग एंड दे आर अर्निंग. They have to think this way, and not schools, it is all colleges also, because sirf graduation is an incomplete qualification today. We need masters, we need professionals. मतलब after graduation also आपको LLB करना है या MBA करना है या कोई और फील्ड पकड़ना है, सिर्फ ग्रेजुएशन BA BCom और BSc करके आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाला. इवन आजकल चपरासी भी MCom होते हैं, बिकॉज अगेन अगर स्किल नहीं है तो, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती है तो फिर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो अब उनको टैली नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता. भाई साथ में करो ना सर. कॉलेज में नहीं आता, जबकि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आजकल स्टार्ट हो गए हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, है ना. लेकिन तो कॉलेज के अंदर नहीं है ना, कॉलेज ने किसी के साथ इंटीग्रेट भी नहीं करा हुआ, तो बाहर ये चीज़ें बच्चा करने ही नहीं जा रहा, तो बच्चा जॉब लेगा कैसे ना. आप कैसे कह रहे हो कि वो बच्चे को आप इस तरीके से ट्रेन कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट की एजुकेशन दे रहे हो, तो क्या सिखा रहे हो ना. आप सिर्फ स्टॉक में जो क्लाइंट बनाओ, उनके पैसे लगाओ, निकालो, या फिर बच्चा अपना ही उसमें इन्वेस्ट करके लूज कर लेता है, तो फिर उसकी दे लूज देयर होप्स. तो एक चीज़ नहीं, लेट हिम मेक अ चॉइस अबाउट थिंग्स. तो आप बीकॉम वाले को अलग चीज़ें दो, उसमें भी चॉइस करने के लिए उसको ऑप्शन दो कि भाई ये कर. एक बेसिक नॉलेज तो दो ही ना कॉमर्स के लिए. वो ही नहीं हो रहा तब तक एजुकेशन सिस्टम को आप ब्लेम करते रहिए, आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला. गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं है, तो आप जाओगे कैसे उस स्कीम में. आजकल MSME और इसके जितने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें आप MBA अगर अच्छे IIMs पे हो, 10-5 करोड़ 2-2 करोड़ के लोन्स गवर्नमेंट इंक्यूबेशन के लिए आपको दे रही है. आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो. व्हाई डिपेंड ऑन अदर्स फॉर अ जॉब, व्हाई कांट यू क्रिएट जॉब्स. यस. तो लेकिन आप क्वालिफाइड होंगे तभी तो ये स्कीम्स आप पर एप्लीकेबल होंगी और आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो. अवेयरनेस ही नहीं. विल बी टॉकिंग ओवर दिस पार्ट एज वेल. अभी आपने जो बोला कि व्हाई टू लुक फॉर जॉब, व्हाई यू कैन नॉट गो फॉर क्रिएटिंग जॉब्स, ये अभी भी हमारे यहाँ की कुछ मेंटालिटी है. 2 चीज़ों पर बात करते हैं. पहली चीज़ तो आज भी जो बोला जाता है पेरेंट्स की तरफ से, आपको कई बार सुनने को मिलेगा, और नॉट पेरेंट्स, फ्रॉम ऑल द सोसाइटी पीपल साइड, कि भाई अगर जैसे कोई टीचर है सामने, कि वो इतना बड़ा टीचर कह रहा है तो वो सही होगा, जबकि टीचर को भी नहीं मालूम बहुत सारी चीज़ें क्या है ना. तो बस उन्होंने उसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ के साथ चले गए. वो इतना बड़ा डॉक्टर कह रहा तो वो सही होगा, है ना. तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने पूरी तरीके से छोड़ रखा है. द पेरेंट्स ऑल्सो शुड बी टेकिंग केयर ऑफ कि वास्तव में क्या चीज़ सही हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है. हकीकत है कि बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे हैं. राइट्स तो अपने पूरे ले रहे हैं, है ना, लेकिन जो उनके कर्तव्य हो सकते हैं उनको पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं. वो एजुकेशन में भी है, वो टीचिंग में भी है. अभी हम जब बात कर रहे थे कि अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको अगर कहीं पर अकाउंटिंग करने के लिए दे दिया, उनको आता नहीं है. गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग ऑल दोज थिंग्स. जो NEP स्टार्ट हुआ, न्यू एजुकेशन प्रोग्राम कंपलसरी है ना, कॉलेज को चलाना है. उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स में सबको दिया जा रहा है ये सारा सब कुछ पार्ट, और उसमें टैली, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सबके कोर्सेज हैं. बट जैसे ही ग्राउंड लेवल पे आते हैं, फिर वहाँ पे करप्शन स्टार्ट होता है. कुछ
इधर पे किया जाता है, कुछ अपने पास रखा जाता है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट पे काम हो जाता है और उसका सारा बर्डन पड़ता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की पॉकेट पर। फिर लास्ट में वो पेरेंट बेचारा पैसा कमाने में ही चला जाता है, कहाँ से बच्चे को टाइम दे, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें होने लग जाती हैं। तो आई थिंक अगेन कि हमें नई चीज़ों को बहुत सारी इंप्लीमेंट करने की जगह जो पुरानी चीज़ें खराब है उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत ज़रूरी है, ना, ये बहुत थॉट सारी चीज़ें हो प्रोसेस सकती है, हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है, इसको करने में समय लगेगा, लेकिन हाँ जब तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब only educators do not have this responsibility, it is child who should also feel responsible, it is parents, मतलब उनको हफ्ते में 4 से 5 घंटे निकालने ही पड़ेंगे जब वो बच्चा क्या कर रहा है टीचर से आके मिलें, समझें उसकी रिक्वायरमेंट्स को, थोड़ा फुलफिल करने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम दें उसके साथ। आप सिर्फ पूछना भी शुरू कर देंगे बेटा क्या पढ़ के आया, आप कुछ देखिए, कुछ मत कहिए, 10 में से 2 नंबर है, कुछ मत कहिए, आप देख लीजिए बेटा थोड़ा देख इसमें क्या तेरी कमी है, काम कर ले इस पर। तो हिला रहा है चिल्ला रहे हैं आप उस पर, तो उससे क्या होगा, वो आगे से या आप दिखाने भी वाला। मैं तेरी फीस नहीं पे करूँगा, ये चीज़ें नहीं काम करती हैं। आप उसको करिए 2 है बेटा, तो टीचर से मिलिए कि सर 2 क्यों हैं, क्यों हम पढ़वा रहे हैं, इसको 10 कैसे बनाया जा सकता है। बच्चे के साथ बैठिए, उसको काउंसिल करिए कि वो उस चीज़ को 8 तक 6 तक 10 तक लेकर जाए। इस चीज़ की आज की ज़रूरत है, तो समय तो निकालना पड़ेगा सबको, तब जाकर ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी। जैसा हमारी एक्सपेक्टेशन है तभी ये चीज़ें पूरी हो पाएंगी। देन कम ऑन द सेकंड पार्ट जो अभी हमने बात रखी थी, व्हाई नॉट टू क्रिएट जॉब्स। तो क्यों आज भी ऐसा कुछ है कि हमारी सोसाइटी बिजनेस की तरफ नहीं जाना पसंद करती है, स्टिल इन द माइंड कि भाई मुझे तो जॉब ही करनी है। सी इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री, पीपल डोंट हैव रिसोर्सेज। अगर हम ट्रेडिशनल बात करें तो वही दिमाग में है कि भाई क्या इतना रिस्क लेना, बिजनेस खोलना, हमारे पास पैसा कहाँ है, हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ है, तो नौकरी कर ले। तो वो कहीं ना कहीं भाई आज की डेट में देखें तो 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ ऑन जॉब्स। तो उनके बच्चे होते तो वो उनके पास तो पैसे ही नहीं है कि वो उनको कोई बिज़नेस खुलवा के दें। तो अगर वही बच्चे के ऊपर है कि वो उतना टैलेंट एक्वायर कर पाए और उतना नॉलेज एक्वायर कर पाए, स्किल एक्वायर कर पाए कि वो सोच पाए कि मैं क्या अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं। गवर्नमेंट हैज़ बीन हेल्पिंग अ लॉट। अभी हमने कई आपने कुछ लोन्स के बारे में बात की, मुद्रा लोन है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो बहुत आप पॉडकास्ट पहले भी करा है एमएसएमई और उस पर कि कितने लोन्स बहुत सारा वो हेल्प आउट कर रहे हैं, बट स्टिल दिस इज द माइंडसेट के द पीपल डू नॉट वांट टू गो फॉर द बिजनेस। लेडीज के लिए 50,000 1 लाख के लोन, पापड़ बनाना, अचार बनाना, मतलब देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट तो मींस देयर इज अ रिजर्वेशन कि आप लीजिए और आप स्टार्ट करिए। पीपल हैव बीन वर्किंग अ लॉट, गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग अ लॉट। डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है सर इंडिया में। अगर मैं मतलब ये सोचता हूँ हाई प्रोफाइल जॉब मेरे लिए तो यही काम है, मैं यही कर सकता हूँ, ये वाला काम मेरे को सूट ही नहीं करता। अरे पैसा कमाने से मतलब है और एक अपनी रेपुटेशन होने से मतलब है। आप वहाँ से स्टार्ट करिए, कहीं ना कहीं पहुँचेंगे अगर आपके अंदर टैलेंट होगा। आप स्टार्ट ही वहीं करना चाहोगे तो कैसे होगा ना। तो छोटे लेवल से भी चीज़ों को स्टार्ट करके बड़ा कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। अब रिलायंस की भी बात करें तो यही सुनने में आता है कि धीरू भाई अंबानी ने लोटा बेचा था, उससे वो पैसा रिसोर्सेज जनरेट करे और आज वो यहाँ तक पहुँचे थे। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखिए कहाँ है। So every big journey starts with a single step। वो तो पहला कदम तो उठता ही है ना, वो छोटे ही होते हैं, आप एक साथ जंप तो कहीं पे भी नहीं करते। कल्चर वही है ना इंडिया में कि हम पैसे वाले नहीं हैं या हम नौकरी पे हैं, हमारे पास इतना है ही नहीं कि हमारा बच्चा इस चीज़ में जाए तो हमारा बच्चा भी नौकरी करेगा साहब। तो वो माइंडसेट चेंज करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ज़रूरी है। बात वहीं घूम फिर के आती है अगेन द एजुकेशन सिस्टम कहीं ना हाँ, तो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन और स्किलफुल बनाना पड़ेगा। तो लोगों को अपने आप समझ में आएगा कि इस चीज़ को हम इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, 1 ईयर प्रोग्राम, 6 मंथ्स प्रोग्राम, इवन ये IIMs बड़े इंस्टीट्यूट्स भी दे रहे हैं। तो ये ठीक है, कल्चर को डेवलप करने के लिए समय लगता है। माइंडसेट चेंज एक दिन में नहीं होता, समय लगता है, लेकिन लोगों को कम से कम सोचना तो शुरू करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तभी ये चेंज आ पाएगा। तो उसके लिए इट कम्स ऑन द एजुकेशन सिस्टम। उसमें हम फिर से देखते हैं तो इनोवेशन बेस्ड सिस्टम नहीं है, जहाँ पे जो बच्चे का जो ब्रेन डेवलप हो वो इनोवेशन के थ्रू भाई और कुछ हो सकता है, क्या और किया जा सकता है, उन चीज़ों के ऊपर हम कहाँ सोचते हैं। हमारी एजुकेशन में वो क्रैम करने का सिस्टम है, ये हुआ था आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए और आपको एग्जाम्स में लिखकर आना है। तो हाउ द ब्रेन इज गोइंग टू बी डेवलप। और जब ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है तो फिर आप कहाँ से बहुत सारी चीजें इनोवेशन कहाँ से आप करेंगे। स्कूल लेवल से ही आप अगर 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे को करना चाहते हैं तो आप IIT से लोगों को बुलाइए, इंडस्ट्री से लोगों को बुलाइए, उनके सामने लेक्चर चलाइए, हाउ यू बिकेम सक्सेसफुल इन लाइफ, व्हाट डिड यू डू टू बिकम सक्सेसफुल। देन दे विल डेवलप दिस इंस्टिंक्ट ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। दे विल सी दिस गाय, ये यार इसने इतनी मेहनत और इस तरीके से करी तो ये एंटरप्रेन्योर है, तो मैं भी बनूंगा। आप प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए एग्जाम्पल से क्रिएट करते हैं ना। अगर आप पढ़ते हैं, जितना एग्जाम्पल्स देते हैं, दैट मीन्स आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है। तो यहाँ पर उन बच्चों के सामने भी एक एग्जाम्पल क्रिएट करिए ना। आप इंडस्ट्री से अगर किसी को कहते हैं कि साहब आकर हमारे स्कूल, पैसे नहीं लेगा वो।
अगर वो ढंग का आदमी है तो वो पैसे नहीं लेगा, आकर बताएगा कि उसने लाइफ जर्नी कैसे इस्टेब्लिश करी अपनी। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आज की स्कूल में जो जीरो पीरियड होता है वो बच्चों को खाली बैठ के भैया तुम ना कवर कर ले, जो भी कर ले, आप जो ट्यूशन चाहते हैं वो पढ़वाइए, जो अगर वीक बच्चा है आइडेंटिफाई करिए। आप उस टाइम पर किसी ऐसे प्रोफेशनल को बुलाइए जो अगर वहाँ अपनी लाइफ जर्नी एक्सप्लेन करता है तो शायद इन बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक स्पार्क मिलेगा, जो आज की मेजर रिक्वायरमेंट है। ट्रू। तो ये स्पार्क क्रिएट करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर हम उसी ढर्रे पर चल रहे हैं, लैंग्वेज वही चली आ रही है, सारा सब उस ढर्रे पर चल रहे हैं, तो कभी आप डेवलपमेंट सोच नहीं पाएंगे। तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा जिससे इन बच्चों के अंदर कुछ और अच्छा कर सकते हैं। ट्रू दैट्स बीन गोइंग ऑन। कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा, वो इनोवेटिव होना ही पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे बाकी और दूसरी कंट्रीज़ की, अगर हम इंडिया के साथ ही बात करें, चाइना हैज़ बीन डूइंग सो गुड, है ना, कितना आगे वो निकल चुके हैं। तो वो इस पे नहीं है कि हमने क्या रटा हुआ है, वो दे हैव बीन लुकिंग फॉर कि कुछ नया किया जा सकता है, क्या कुछ नया किया जा सकता है। एंड देयर इज अ साइकिल, हम जितने सारे सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, विद एवरी सॉल्यूशन देयर इज अ प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स, एंड दोज प्रॉब्लम्स कैन बिकम सम ऑफ द बिजनेसेस, एंड दैट ओनली वी हैव टू गो फॉर थिंकिंग। आज लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो अगेन दैट वुड बी द प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम कैन बिकम अ बिजनेस। सर ये कंपटीशन ज़्यादा है तो जियो कैसे एस्टैब्लिश हो गया? अगर आप बताएं, इतने अगर एयरटेल वाज सो बिग या वोडाफोन आइडिया वाज सो बिग, हाउ डिड जियो एस्टैब्लिश इटसेल्फ? तो किसी को सोचना तो पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, दिए फ्री प्लान्स, लोगों को आदत पड़वाई कि इंटरनेट यूज़ करो। आज इंटरनेट यूजर्स भी ज़्यादा हैं और आज सब ने ही अपने टेरे प्लान्स कितने बढ़ा दिए, चाहे आप एयरटेल हो चाहे जियो। जो कंपनी 250, 300, 650 करोड़ के लॉस से एस्टैब्लिश हुई थी या 7,000, 8,000 करोड़ के प्रॉफिट पर है, सोच होनी चाहिए। तो वही आपको अपने अंदर और वो सोच आएगी जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो आपको ये सोच दे पाएंगे। आप अपने आप से नहीं सोच सकते। तो वही कहीं ना कहीं ज़रूरत है। स्विट्ज़रलैंड में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर वो कहते हैं बच्चे को पहले ही IQ लेवल टेस्ट स्कूल प्रीलिमिनरी लेवल पर ही IQ, इवन चाइना में भी प्रीलिमिनरी लेवल पर ही वो बच्चे को कैटेगोरिकली डिवाइड कर लेते हैं कि ये बच्चे का IQ लेवल ये है, ही हैज़ टू बी अ लेबर, दिस इज वेयर ही हैज़ IQ लेवल ऑफ दिस, ही हैज़ टू बी अ डॉक्टर। फिर गवर्नमेंट खर्च करती है उन पर, पेरेंट्स एजुकेशन पे खर्च ही नहीं करते हैं। बच्चे को पहले ही, मतलब जब वो बच्चा 7, 8, 10 साल का है तब उसका IQ लेवल टेस्ट करके उसकी फील्ड चूज कर ली जाती है और वहाँ से हम उसको उस तरीके की, भाई अब मेरा कमाई तो लेबर भी करती है ना। अगर हम आज एक मिस्त्री की भी बात कर रहे हैं तो 1,000 रुपये की अगर उसकी फीस है एक दिन के काम के, दिहाड़ी के, अगर वो 30 दिन पूरा काम करता है तो 30,000 रुपये तो वो भी कमा सकता है ना। तो हम ये सोचे कि हम भूख मर रहे हैं तो भाई कमाने के लिए तो बहुत, और वो स्किल्ड है तो शायद वो 2,000 भी कल को वो ठेकेदार बन सकता है, 3,000 भी कमा सकता है दिन के। बिल्कुल। तो सोच की बात है ना। तो अगर हम उन कंट्रीज में ये कर रहे हैं कि हम बच्चे को पहले ही उनका एक टेस्ट ले करके IQ लेवल के बेसिस पर हम उनका प्रोफेशन उस छोटी लेवल पर उस IQ लेवल पर डेवलप कर रहे हैं, गवर्नमेंट खर्च करिए उनके ऊपर और फिर उनके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 3 साल तक तुम गवर्नमेंट सर्विस में रहोगे क्योंकि हमने तुम पे खर्च करा है। सीखो, सेवा दो, ताकि तुम जब रियल लाइफ प्रोफेशनल फील्ड में भी आओ, जैसे एक्सपोजर हो आपके पास। आज की डेट में भी MBBS और MD जितने बच्चे करते हैं इनको गांव में जाकर 1 साल प्रैक्टिस करनी है। MBBS का करिकुलम का पार्ट है। ऐसे ही इनके साथ भी होना चाहिए, 2 साल 3 साल सेवा करनी है ताकि आदत पड़े कि आप सेवा करें। जो आपने गवर्नमेंट ने आपके ऊपर खर्च करा वो कहीं ना कहीं समाज, गवर्नमेंट को नहीं चाहिए तो समाज को आप वापस करें, क्योंकि गवर्नमेंट समाज के लिए है। तो इस तरीके का कल्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। ये आज तभी हमारी कंट्री, जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन, या जब तक लोगों की सोच दूसरों के प्रति अच्छी नहीं होगी तब तक हम इस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच आज की डेट में बहुत मैंडेटरी है। आपने जितने अभी एग्जाम्स के ऊपर बात की, एक और वर्ड इसमें रह गया जिसके ऊपर अभी हम जानकारी नहीं ले पाए, उसके बारे में और थोड़ा बताइए। आपने क्लैट के बारे में भी बात की, व्हाट इज दैट? दैट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वेयर अ चाइल्ड डज ग्रेजुएशन प्लस लॉ। लाइक इफ समबडी वांट्स टू बी एन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर और PCS, उसका है सिविल सर्विसेज में जाना। साहब 8वीं में ही देख लिया उसने किसी को पड़ोस में या घर में, उसे लगता है वही बनना है। अब आपको भी पता है वो 12th फेल मूवी आई थी, आपने उसमें भी देखा, या वैसे भी पता है कि पॉइंट्स में रिजल्ट है। अब बच्चा अगर उस समय पर ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाई करता है उस चीज़ के लिए, ग्रेजुएशन में शुरू करता है, फर्स्ट ईयर से शुरू कर देता है, और सिविल सर्विसेज आजकल तो लोग फिर वही जैसा हम बात कर रहे थे,
9वीं 10वीं से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 7 साल। भाई ऐसा कहीं काम नहीं करता। तो वो ठीक है, सेकंड थर्ड ईयर या मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, दैट्स सफिशिएंट टाइम। अगर किसी को बनना है तो उतने में बन जाएगा, नहीं बनना है तो आप उसे नर्सरी से पढ़ाइए, तो भी कोई कुछ चीज़ें बदलने वाली नहीं है। तो 3 साल पढ़ने का बच्चे ने पेपर दिया, 2 साल 3 साल बाद उसका प्री निकल गया, फिर उसका मेंस नहीं निकला, फिर प्री से स्टार्ट करेगा, पता चला प्री नहीं निकल रहा था, अब मेंस नहीं निकल रहा, फिर इंटरव्यू में चहवा लुढ़क गया, वो अब डिप्रेशन में जाएगा। तो अगर ऐसे बच्चे को सिविल सर्विसेज में जाना है तो व्हाई नॉट बिकम अ स्टैंडिंग प्रोफेशनल फर्स्ट। तो आफ्टर 12 देयर इज एन ऑप्शन टू गेट इनटू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो क्लैट के थ्रू लेती हैं, और इसमें आप जो है पहले एक करिकुलम फॉलो करते हो जिसमें आप BA LLB या BBA LLB करते हैं, इसमें या BSc LLB का भी ऑप्शन है कुछ NLUs में। तो आप ये करिकुलम 5 साल में कंप्लीट करते हैं, तो 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, 2 years ऑफ योर प्रोफेशनल डिग्री एज अ लॉयर। नाउ द डे यू कम आउट ऑफ एन NLU, एवरेज इन 26 NLUs हैं भारत में, तो इन सब का एवरेज पैकेज भी अगर हम देखें तो 12-16 लाख के बीच में है। तो अब 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए कमाने लायक तो पहले दिन से है। आपको नहीं कमाना, आपको सिविल सर्विस में जाना है, अब अपना कुंडी लगाइए, अंदर से पढ़ाई करिए 2 साल, प्री मेन जो भी आपको निकालना है उसकी तैयारी करिए और निकालिए। निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, और आपके एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि अगर मैं वो नहीं बन पाया तो मैं 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कमाने लायक तो मैं आज भी हूँ, भूखा नहीं मरूंगा, मैं डिप्रेशन में कतई नहीं जाऊंगा कि मेरा वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो ये एग्जाम भी और उसके बाद PCSJ जुडिशरी, अगर जज बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, तो आप इसके तुरंत बाद PCSJ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 4 साल का ग्रेजुएशन, 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा मैं लॉ कर लेता हूँ तो 3 साल का LLB, 7 साल का कार्यक्रम 5 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो 2 साल तो आपके लाइफ में आप यहाँ सेव कर रहे हो, और इस 2 साल को सेव करके आप ये 2 साल में 1 साल जोड़ करके आप सिविल सर्विस की तैयारी में लगा लो। तो स्टैंडिंग जब होगी आपके पास और बैकअप होगा तो आपको डर नहीं होगा कि मेरा नहीं निकला, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो आप सिविल सर्विसेज आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं भी निकला तो आपके पास एक बैकअप होता है, एक स्टेपनी होती है कि भाई, और वो स्टेपनी भी फर्स्ट क्लास है। ऐसा नहीं है कि हमने एक स्पेयर टायर वाली, नए टायर वाली स्टेपनी अपने साथ रखी हुई है, भाई ये भी एज गुड एज अ कंप्लीट टायर। अगर ये भी लगा ली तो हम कुछ ना कुछ तो यहाँ से भी बना के ले जाएंगे, अगर हमारे अंदर वो कैलिबर है तो ये 12th के बाद एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आप 5 साल में अपना ग्रेजुएशन प्लस एक लॉ की डिग्री LLB ये साथ में कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज वेयर यू गो आफ्टर डूइंग योर क्लैट एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स एकेडमिक से थोड़ा सा हट कर हैं, तो आपको मैं नहीं कहता स्कूल छोड़िए, स्कूल डिसिप्लिन लाता है लाइफ में, स्कूल कल्चर लाता है बच्चे के अंदर, बच्चे का जो पर्सनालिटी होती है वो स्कूल से ही डेवलप होती है, और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं बेटर होते हैं, हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, चीज़ें बेटर होती हैं। स्कूल मत छोड़िए। सैटरडे संडे वाला टाइम जो आप सोकर संडे पूरा दिन बर्बाद करते हैं, सिर्फ वो 2 दिन की प्रिपरेशन भी अगर आप 11th ऑनवर्ड्स करना शुरू करते हैं तो शायद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, मेड भी IIT ऑल्सो। अगर आप स्कूल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, भाई NCERT आता है, करिकुलम वही है, तो अगर PCM में भी NCERT ढंग से स्कूल लेवल पर कर रहे हो, सैटरडे संडे वाला टाइम भी दे रहे हो, तो शायद अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आप उतने टाइम में भी आप आराम से उसको फोकस करके कर रहे हो तो आप कर सकते हो। आप 2 घंटे 1 घंटा लेजर का रख रहे हैं, और जो ये जो 150 दिन छुट्टी गिराई मैंने, अगर आप इसको भी आप उसमें से 2-2 घंटे अपने लेजर के लिए रख रहे हो, साल में 1 हफ्ता पेरेंट्स के साथ घूमने जा रहे हो, आप करो। मैं वो नहीं कह रहा कि आप कुछ नहीं करोगे तो ही आप अच्छा बन पाओगे, लेकिन अगर एक टाइम टेबल, एक सिस्टम होगा जो कि आप एक अपने टीचर के साथ बैठकर बना सकते हैं, एक एजुकेटर के साथ, एक आउटसाइड काउंसलर के साथ बैठ के बना सकते हैं, अगर वो टाइम टेबल है आपकी लाइफ में तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक और नई फील्ड जो निकल कर आई है, फील्ड तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज जो हमारी नई जनरेशन है, जेन जी स्पेशली, उस फील्ड में बहुत अपना करियर देखती है। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो इसमें कितनी आप फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं? सर मैंने तो ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो गेमिंग से, आप मानेंगे नहीं, वो 20-20, 25-25 लाख रुपए साल के गेमिंग से कमाते हैं, जहाँ पर CET MRF ने उनको हायर करा हुआ है, और वो उनको 50,000 80,000 रुपये महीने का सिर्फ 3 घंटे दिन में गेम खेलने का देता है। There have been people in Noida, Gurgaon, I am in touch with some people, जिनको इतना पैसा तो ये कंपनी स्पॉन्सर दे रही है, स्पॉन्सरशिप दे रही है, सिर्फ उनको जो उनका प्लेइंग प्लेटफॉर्म है, जो भी उनका स्क्रीन नेम है, उसके ऊपर MRF का वो लगा। जैसे आप प्लेयर्स को देखते हैं वो MRF का या CET का अपने बैट पे लोगो लगा लेते हैं, उसका पैसा मिलता है उनको जी।
या वो नाइकी का जूता पहन के घूम रहे हैं, उनका पैसा मिलता है उनको। तो ऐसे ही ये लोग जब गेम, और 3 घंटे खेलना रोज़ ज़रूरी है, दे हैव रीच्ड, मतलब उसको भी प्रोफेशनली वो करते हैं, दे हैव रीच्ड द लेवल। जब कंपनी देखती है यार ये फर्स्ट, मतलब टॉप 10 इन द वर्ल्ड चल रहा है, तो उसको खुद अप्रोच करती है और उसे हायर करती है, और वो गेम खेल के भी कमा लेता है। तो जेनजी की बात करें तो सोशल मीडिया, एआई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, और इसके आज देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन एवरीथिंग, बट द ओनली थिंग इज वट एवर यू डू देयर शुड बी अ लेवल ऑफ सिंसियरिटी इन डूइंग दैट थिंग। आप जब तक कमिटेड नहीं होंगे जो आप कर रहे हैं, तब तक आप सक्सेसफुल किसी भी चीज़ में नहीं हो सकते। There are so many chartered accountants who you have studied and passed, they have no working knowledge. तो इसीलिए करिकुलम में 2 साल या 3 साल की ट्रेनिंग इंक्लूड करी गई है ना, कि when you become a chartered accountant you should know what you have to do, what chartered accountants do। ये आपको उस 2 साल की ट्रेनिंग जो कि मैंडेटरी है उसमें सिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप जेनजी की बात करें, जो सोशल मीडिया वगैरह है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि रील्स का भी आजकल एडवर्टाइजमेंट्स की तरह यूज़ होता है। यू कैन सी दैट देयर आर पोस्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप बात भी कर रहे हैं और आपका इंटरनेट ऑन है, आप आज बात कर रहे हैं दार्जिलिंग घूमने जाना है, तो फोन पे आप उसके बाद जब भी आप खोलेंगे कुछ तो दार्जिलिंग के होटल्स दिखा रहा होगा आपको। तो ये कहीं ना कहीं ये भी ह्यूमन मेड कैरेक्टर एआई का उस तरीके का यूज है ना, कि मोबाइल आपका ये सुन रहा है, आप किस चीज के जूता खरीदने की बात कर रहे हैं तो कल नाइकी और रिबॉक के सारे एडवर्टाइजमेंट तो अपने आप आने लगेगा ना। तो ये फील्ड भी तो फील्ड है ना, मतलब आप कर सकते हैं इसमें। बच्चा अच्छा होना चाहिए और उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए और कमिटेड होना चाहिए। कुछ फील्ड्स की कोई कमी नहीं है, कमाई की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर बस वो स्पार्क, वो इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि आप उसे अचीव कर सकें। आपने एआई का जिक्र किया, वी आल्सो पीपल हैव कम हियर, वेरी फर्स्ट लैब ऑफ एआई इंटीग्रेटेड, हमारे पास कुछ कोर्सेस हैं, हम एआई के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस एज अ फ्यूचर? मैंने आपको यही बताया कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं आप आज की डेट में। भाई अगर हम आज रोबोटिक्स और फलाने की भी बात करते तो वो रोबोट जब ऑपरेशन कर रहा होता है किसी मरीज का, जैसे मेडिकल में फील करते हैं, तो वो डॉक्टर कहीं ना कहीं कर रहा होता है, रोबोट सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं एआई विल टेक अवे जॉब्स, तो ना, एआई कैन क्रिएट जॉब्स डेफिनेटली। तो भाई एआई लर्निंग इम्पार्ट करना, ये भी तो सिखाना ही पड़ेगा ना, तो ये भी एक पार्ट ऑफ जॉब है। तो यू आर डूइंग एन फैबुलस जॉब वेयर यू विल ट्रेन दी स्टूडेंट्स टू यूज दिस योर ओन स्किल ऑफ कम्युनिकेशन इम्पार्टेशन, उसके अंदर मार्केटिंग को मिला करके, और जो एआई टूल्स आप यूज़ करेंगे। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन दिस, बिकॉज एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। बिकॉज जो लोग के ऊपर रिसोर्सेज नहीं है, जैसा आपने बोला, वो 25 लाख पूरा नहीं खर्च कर सकता, 10 लाख एनएलयूज में नहीं खर्च कर सकता, लेकिन एक सब्टल करियर चाहिए उसे। तो इस तरीके के कोर्सेज जहाँ वो कम पैसे खर्च करके अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएगा, वो आप समाज के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। So here now, few last word I would love to listen. If you just want to go for giving some message to the students mainly, जो नए करियर बनाने की तरफ सोच रहे हैं या वो उस जर्नी में है जहाँ पे they are at the verge of making some of the new things, what message you would love to give them? We are about to start the board examinations, 10th, 12th, the most feared, the most the psychological pressures आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। रिलैक्स करिए, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, नए की तरफ मत जाइए, जितना आता है उतना करके आइए, कॉन्फिडेंस से करिएगा। मगिंग से कुछ भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, पुट इट इनटू योर ओन वर्ड्स, यू विल बी सक्सेसफुल। विश्वास करिए अपने ऊपर बस, और जो कर रहे हैं उस पर जब कर रहे हैं तो 100% अटेंशन रखिए, आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। और चॉइस करते वक्त 10th के बाद जब 11th में जा रहे हैं तो एक बार पहले पूरा प्लान करिए, 4, 6, 7, 8 जितना आपको लगता है ज़रूरी है उतने काउंसलिंग सेशंस करिए, फिर आप चूज़ करिए कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या फील्ड होना चाहिए। जो ले लिया फिर आपका 100% कमिटमेंट उस पर होना चाहिए। बीच में ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैंने गलत चूज़ कर लिया। पहले ही वो चॉइस, अगर आप क्यों कर रहे हैं, आपके पास एक एजेंडा होगा तो वो चॉइस गलत नहीं होगी। तो आई विश ऑल आर व्यूअर्स, ऑल आर स्टूडेंट व्यूअर्स, a very best of luck for your board examinations for 10th and 12th, may it be ISC, CBSE or UP board students. There's scope for everybody. It is scope for human beings. It is not the board that you follow. It is not the curriculum that you have followed. It is what you are that will create your own life. So good luck. So friends,
It was Mr. Mukesh Meerchandani, and I really hope you must have got a lot of knowledge, lot of information about career, कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं and क्या आपको सोच के चलना चाहिए and what kind of changes our education system needs. I hope you must have got great piece of information here, and the same way we'll keep on bringing. और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी वो spark है, that you can come to us and you can share your information, your knowledge or your life journey, you can go for contacting us. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग अस. दिस इज राजू गोला शो. थैंक यू सो मच.